Hello dear students, I Rahul Mishra and today we will discuss new chapter matter in our surrounding. So listen, in this chapter first we will discuss what is matter. It means matter क्या है. So listen, matter are those substance which has definite mass and it occupies some space in our atmosphere. It means मैटर ऐसे सब्सटेंस हैं जिनका कुछ ना कुछ डेफिनेट मास होगा. मास मीन्स उसका कुछ ना कुछ वेट होगा. एंड लिसन, दैट ऑक्यूपाई सम स्पेस, और वो क्या करेंगे, कुछ ना कुछ स्थान को घेरेंगे या कुछ ना कुछ जगह को घेरेंगे हमारे एटमॉस्फेयर में. फॉर एग्जाम्पल, दिस मार्कर is a matter and it is a solid matter. Why it is a matter? Because it has definite mass. क्योंकि इसका कुछ ना कुछ definite mass है. ये मार्कर हमारा मैटर है क्योंकि इसका कुछ ना कुछ डेफिनेट मास है या वेट है. एंड लिसन, दिस मार्कर ऑक्यूपाई सम स्पेस इन आवर एटमॉस्फेयर. इट मीन्स ये जो मार्कर है ये हमारे एटमॉस्फेयर में कुछ ना कुछ जगह घेर रहा है. सो लिसन, मैटर आर दो सब्सटेंस विच हैज डेफिनेट मास and it occupies some space. So matter are those substance which has definite mass and it occupies some space in our atmosphere. For example, we all know that some examples of matters are, for example, chalk, water, oxygen gas. All these are matters because all these substances have definite mass and they occupy some space in our atmosphere. Now we will discuss the types of matter. So listen, matter is of generally three types. Matter is of generally three types. The first one is solid, second one is liquid, and third one is gas. So what are solid matter? So listen, those matter in which constituent particles are very close with each other. It means ऐसे मैटर जिनमें मैटर को बनाने वाले पार्टिकल, दैट इज कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, आर वेरी क्लोज विद ईच अदर. इट मीन्स जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं जो कि किसी मैटर को बनाते हैं वो सॉलिड में क्या होते हैं, बहुत पास पास होते हैं. इट मीन्स वी कैन से पार्टिकल्स आर वेरी क्लोज विद ईच अदर. So listen, the matter in which particles are very close with each other, it will be solid. Now, in case of liquid, the particles present at some distance
The particles of liquid are present at some distance. It means जो liquid के particles होते हैं वो कुछ distance पर होते हैं. So we can write particles are present at some distance in case of liquid, but in case of gas, particles are very much far away from each other. It means जो गैस के पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे से बहुत ज्यादा दूरी पर होते हैं. So we can write particles are much far away from each other. So listen, these are the arrangement of particles in solid, liquid and gas. So in case of solid, particles are very close with each other. Solid के पार्टिकल एक दूसरे के बहुत पास पास होते हैं. In case of liquid, particles are at some distance. It means liquid में जो particles होते हैं वो एक दूसरे से कुछ दूरी पर होते हैं. But in case of gas, particles are much far away from each other. It means जो गैस के particles होते हैं वो एक दूसरे से बहुत ज्यादा दूरी पर होते हैं. So listen, there are some properties of matter. So listen, intermolecular space. It means what will be intermolecular space in case of solid? तो सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं वो हमारे एटम भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं. सो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस मींस दैट स्पेस प्रेजेंट बिटवीन टू मॉलिक्यूल ऑफ सॉलिड. इट इज आल्सो कॉल्ड एज इंटर पार्टिकल डिस्टेंस. इसको हम इंटर पार्टिकल डिस्टेंस से भी बता सकते हैं. इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस मींस the space present between two particles of solid. And listen, you can see, आप देख सकते हैं जो दो पार्टिकल के बीच में स्पेस है वो सबसे कम किसमें है. We can see the inter particle space is least in case of solid. solid में सबसे कम है, उसके बाद लिक्विड में है और उसके बाद गैस में है. तो हम लिख सकते हैं इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस विल बी लीस्ट इन केस ऑफ सॉलिड एंड इट इज ग्रेटर देन सॉलिड इन केस ऑफ लिक्विड. एंड लिसन, इट इज मैक्सिमम. मैक्सिमम मीन सबसे ज्यादा है किसके केस में? गैस के केस में. क्या? इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस. Now, so first property we can say this is arrangement of particle. Arrangement of particle. Now, we can say second property, intermolecular space. It is least in case of solid. It is greater than solid in case of liquid. And it is maximum in case of gas. Now we will discuss intermolecular force. Intermolecular force. So what will be intermolecular force? Intermolecular force. So listen, the particle of solid are very close with each other. It means solid के जो particles होते हैं वो बहुत पास पास होते हैं.
तो दो चीजें पास पास तब होती हैं जब उनके बीच में लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो, बहुत ज्यादा हो। ये दो मार्कर पास पास तब आएंगे जब इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ज्यादा हो जाए। इट मीन्स व्हाट इज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट बिटवीन टू मॉलिक्यूल ऑफ मैटर। इट मीन्स किसी भी मैटर के दो मॉलिक्यूल के बीच में लगने वाला जो फोर्स होता है दैट इज कॉल्ड एज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। सो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स will be maximum in case of solid. It means solid के केस में जो intermolecular force होगा वो सबसे ज्यादा होगा। Now सबसे ज्यादा क्यों होगा? क्योंकि इसके जो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे के बहुत पास पास होते हैं। पास पास कब होंगे? जब उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वैल्यू क्या होगी? मैक्सिमम होगी या सबसे ज्यादा होगी। नाउ इन केस ऑफ लिक्विड वी कैन से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इट इज लेस देन इन कंपैरिजन टू सॉलिड। ये सॉलिड से कम होता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। एंड इन केस ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स आर मच फार अवे फ्रॉम ईच अदर। जो पार्टिकल्स हैं गैस के वो एक दूसरे से बहुत ज्यादा दूरी पर होते हैं। इट मीन्स अगर दो चीजें बहुत ज्यादा डिस्टेंस पर हैं तो उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ही कम है। इट मीन्स वी कैन से देयर विल बी लीस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इट मीन्स वहां पर सबसे कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा या इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होगा। नाउ वी विल डिस्कस mass. Next property of solid we will discuss mass. So listen, mass, what will be mass of solid, liquid and gas? So we all know that all these three things are matter. हमें पता है ये तीनों ही चीज क्या है? मैटर है। और मैटर का क्या होता है? डेफिनेट मास होता है। इट मीन्स सॉलिड, लिक्विड, गैस, all three things have definite mass. इट मीन्स सॉलिड का भी मास डेफिनेट होगा, लिक्विड का भी मास डेफिनेट होगा और गैस का भी मास डेफिनेट होगा। नाउ वी विल डिस्कस वॉल्यूम। सो लिसन, फॉर एग्जाम्पल इफ वी टॉक अबाउट दिस क्यूब, अगर हम इस क्यूब की बात करें, सो दिस इज अ सॉलिड, ये एक सॉलिड मटेरियल है। एंड लिसन, What is the meaning of volume? Volume means मैटर हमारा एटमॉस्फेयर में कितनी जगह घेरता है। इट मीन्स हाउ मच स्पेस ऑक्युपाइज बाय मैटर इन आवर एटमॉस्फेयर, दैट इज कॉल्ड एज वॉल्यूम ऑफ दैट मैटर। इट मीन्स अगर हम इस सॉलिड के वॉल्यूम की बात करें, इसका मतलब इसका कुछ ना कुछ वॉल्यूम होगा जो कि ये जगह घेर रहा है हमारे एटमॉस्फेयर में। तो हमें पता है ये कैसा शेप का है, किस शेप का है? इट इज इन क्यूबिक शेप, ये क्यूब शेप का है। और क्यूब का कुछ ना कुछ क्या होता है? डेफिनेट वॉल्यूम होता है। इट मीन्स ये उतनी ही जगह घेरेगा जितना कि इसका वॉल्यूम है। सो लिसन, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, इट मीन्स हम कह सकते हैं सॉलिड का कुछ ना कुछ डेफिनेट वॉल्यूम होगा। सो लिसन, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड विल बी डेफिनेट। नाउ वी विल डिस्कस वॉल्यूम ऑफ लिक्विड। इफ वी हैव अ बॉटल विच कंटेन वाटर, अगर हम लिक्विड के वॉल्यूम की बात करें तो हमारा लिक्विड का वॉल्यूम भी डेफिनेट होता है। फॉर एग्जाम्पल दिस वाटर बॉटल कंटेन फॉर एग्जाम्पल 300 ml वाटर। इट मीन्स इस बॉटल में जो वाटर भरा हुआ है उसका वॉल्यूम कितना है? 300 ml। सो लिसन, वी कैन से लिक्विड आल्सो हैज डेफिनेट वॉल्यूम। लिक्विड के पास भी क्या होता है?
डेफिनेट वॉल्यूम होता है, हम इसका वॉल्यूम डेफिनेट कैलकुलेट कर सकते हैं। बट लिसन, द मॉलिक्यूल ऑफ गैस आर रैंडमली मूव। इट मीन्स जो गैस के मॉलिक्यूल होते हैं वो रैंडमली मूव किया करते हैं। इट मीन्स अगर वो रैंडमली मूव करेंगे देन वी कैन नॉट डिटरमाइन द एग्जैक्ट वॉल्यूम ऑफ गैस। इट मीन्स तब हम गैस के एग्जैक्ट वॉल्यूम को डिटरमाइन नहीं कर सकते। सो लिसन, वॉल्यूम ऑफ गैस विल बी इनडेफिनिट। इसलिए जो गैस का वॉल्यूम होता है वो क्या हो जाता है, इनडेफिनिट हो जाता है। Now we will discuss shape. So listen, what is the shape of solid? We all know that this is a solid and it is cubic in shape. It means solid का कुछ ना कुछ definite shape होगा, जैसे कि ये solid हमारा cubic shape में है। So listen, shape of solid will be definite. Now shape of liquid, it will be indefinite. Why it is indefinite? So listen, in case of liquid, we all know that when liquid is present in bottle, then liquid takes the shape of this bottle. If liquid is present in a cup, then liquid take the shape of that cup. It means liquid को या गैस को हम जिस कंटेनर में रखते हैं तो लिक्विड या गैस हमारे उस कंटेनर का शेप ले लेता है। इट मीन्स देयर इज नो फिक्स्ड शेप ऑफ लिक्विड एंड गैस। इट मीन्स लिक्विड और गैस का कोई भी फिक्स्ड शेप नहीं है। सो वी कैन से द शेप ऑफ लिक्विड इट विल बी indefinite. The shape of gas it will also be indefinite. So listen, we can say mass of solid will be, mass of solid, liquid and gas will be definite. Volume of solid is definite. Volume of liquid is definite. But volume of gas is indefinite. Now, shape of solid will be definite. Shape of liquid will be indefinite. And shape of gas will also be indefinite. Now we have discussed 6 properties of solid, liquid and gas. So listen. First property is intermolecular force. Second one is mass. Third one is volume. Fourth one is shape. Fifth one is arrangement of particles. And sixth one is intermolecular space. Now we will discuss next property of solid, and it is 7 number property. And it will be density. This is 7 number property. So listen, what will be density of solid, liquid and gas? So listen, we all know that density equal to mass upon volume. हमें पता है जो density होती है वो mass यूनिट वॉल्यूम में प्रेजेंट मास के बराबर होती है। इट मीन्स यूनिट वॉल्यूम में मास जिस मैटर का ज्यादा होगा उसकी डेंसिटी भी ज्यादा होगी। तो हमने क्या कंसीडर किया, जो हमारा सॉलिड है, जो हमारा लिक्विड है और जो हमारा गैस है, उसमें हमने क्या कंसीडर किया
एक यूनिट वॉल्यूम, क्या कंसीडर किया, एक यूनिट वॉल्यूम। यूनिट वॉल्यूम मीन्स हमने कंसीडर कर लिया ये जो इतना पार्ट है सॉलिड का, इतना ही इक्वल पार्ट जो है ये लिक्विड का है, और इतना ही इक्वल पार्ट जो है ये गैस का है, और इतने पार्ट का वॉल्यूम जो है वो कितना है, यूनिट वॉल्यूम है। यूनिट वॉल्यूम मीन्स 1 सेंटीमीटर क्यूब। फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ क्यूब। अगर हम इसको क्यूब कंसीडर कर लें, अभी तो ये हमें रेक्टेंगल दिख रहा है, बट इफ वी कंसीडर दिस इज अ क्यूब, then we all know that the volume of cube is length cube. It means if length equal to 1 centimeter, then volume of cube will be 1 centimeter cube. This is called as unit volume. इसी को क्या बोलेंगे, यूनिट वॉल्यूम। तो अगर हम एक फॉर एग्जांपल क्यूब ले लें, इसको 3 डायमेंशनल मान लें, और यहाँ पे एक क्यूब लें, एक यहाँ पर क्यूब लें और एक यहाँ पर क्यूब लें, और इतने वॉल्यूम को कंसीडर करें, ये कितना है, यूनिट वॉल्यूम। तो यूनिट वॉल्यूम में सबसे ज्यादा पार्टिकल्स किस में आते हैं, सॉलिड के केस में, कि लिक्विड के केस में, कि गैस के केस में। सो इन केस ऑफ सॉलिड यू कैन सी देयर आर मेनी नंबर ऑफ पार्टिकल्स। इट मीन्स सॉलिड के केस में बहुत सारे पार्टिकल्स आ गए हैं इस यूनिट वॉल्यूम के अंदर। So you can see 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। तो यूनिट वॉल्यूम में सॉलिड में 15 पार्टिकल हैं, जबकि लिक्विड में केवल 4 पार्टिकल्स हैं, जबकि गैस में केवल 2 पार्टिकल्स हैं। इट मीन्स सबसे ज्यादा यूनिट वॉल्यूम में मास किसके कारण होगा, सॉलिड में प्रेजेंट 15 पार्टिकल के कारण। सो सॉलिड के यूनिट वॉल्यूम में 15 पार्टिकल आ रहे हैं, इसलिए सॉलिड के यूनिट वॉल्यूम में जो मास होगा वो 15 पार्टिकल के मास के बराबर होगा। इसलिए जिसका मास ज्यादा होगा उसकी डेंसिटी भी ज्यादा होगी। इट मीन्स डेंसिटी ऑफ सॉलिड विल बी मैक्सिमम। इसलिए जो सॉलिड की डेंसिटी होती है वो क्या होती है, सबसे ज्यादा होती है। लिक्विड की जो डेंसिटी होती है वो सॉलिड से कम होती है, और गैस की जो डेंसिटी होती है वो क्या होती है, सबसे कम होती है या लीस्ट होती है। नाउ वी विल डिस्कस नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, एंड इट इज काइनेटिक एनर्जी। अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करेंगे, दैट इज काइनेटिक एनर्जी। सो व्हाट विल बी काइनेटिक एनर्जी? सो वी ऑल नो दैट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ सॉलिड इज लीस्ट। हमें पता है जो सॉलिड के मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे के पास पास होते हैं। इट मीन्स उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है। अगर बहुत ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा तो वो अपनी जगह पर ज्यादा मूवमेंट नहीं कर पाएंगे या ज्यादा मोशन नहीं कर पाएंगे। इट मीन्स जो सॉलिड के पार्टिकल में मोशन होता है वो सबसे कम होता है। तो जिसमें मोशन ज्यादा होता है उसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है। फॉर एग्जाम्पल गैस, तो गैस के मॉलिक्यूल बहुत तेजी से मूव करते हैं इधर उधर डायरेक्शन में, इसलिए इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, मैक्सिमम होती है। जबकि जो हमारा सॉलिड है इसके मॉलिक्यूल या इसके पार्टिकल क्या होते हैं, अपनी जगह पर फिक्स्ड होते हैं, इसलिए सॉलिड की काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, लीस्ट होती है। और लिक्विड की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, सॉलिड से ज्यादा या गैस से कम। दोनों हम लिख सकते हैं, इट इज ग्रेटर देन सॉलिड और लेस देन दैट ऑफ लिक्विड। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी वी विल डिस्कस 9 नंबर प्रॉपर्टी, एंड इट इज थर्मल एक्सपेंशन। थर्मल एक्सपेंशन मीन्स, थर्मल मीन्स टेम्परेचर
एक्सपेंशन मीन्स बढ़ जाना, इट मीन्स टेम्परेचर या हीट, किस मैटर में हीट देने पर वो एक्सपैंड कर जाता है. सो वी ऑल नो दैट थर्मल एक्सपेंशन विल बी मैक्सिमम इन केस ऑफ गैस. हमें पता है गैस के मॉलिक्यूल बहुत तेजी से रन करते हैं या भागते हैं, तो उनमें अगर हीट और दे दी जाए तो वो मॉलिक्यूल और तेजी से मूव करेंगे क्योंकि वो हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे. सो इन केस ऑफ गैस थर्मल एक्सपेंशन विल बी मैक्सिमम, and in case of solid thermal expansion will be least, and in case of liquid thermal expansion will be greater than solid. Now 10 number property is diffusion. Diffusion means भी एक तरह का होता है expansion या फैलना, spreading of any matter is called as diffusion. It means किसी भी मैटर का फैलना क्या कहलाता है, डिफ्यूजन कहलाता है. तो हमें पता है जो गैस होती है वो सबसे तेजी से फैलती है. सो डिफ्यूजन विल बी मैक्सिमम इन केस ऑफ गैस, एंड इट विल बी लीस्ट मीन सबसे कम होता है किसमें, सॉलिड में, एंड इट इज ग्रेटर देन सॉलिड इन केस ऑफ लिक्विड. नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज फ्लूडिसिटी. फ्लूडिसिटी मीन्स बहने का गुण. सो फ्लूडिसिटी, दिस इज 11 नंबर प्रॉपर्टी. सो व्हाट विल बी फ्लूडिसिटी ऑफ सॉलिड. सो सॉलिड कैन नॉट फ्लो. सो सॉलिड कैन नॉट flow. Liquid and gas can flow. Liquid can flow and gas can flow or spread in our atmosphere. So listen. Now next point is 12 number property, and it is compressibility. Compressibility means कौन सा प्रेशर डालने पर दब जाएगा. इट मीन्स सबसे ज्यादा जो प्रेशराइज करने की प्रॉपर्टी होगी वो किसमें होगी, या दबने का जो गुण होगा वो सबसे ज्यादा किसमें होगा. सो गैसेज आर हाईली कंप्रेसिबल इन नेचर. इट मीन्स गैसें क्या होती हैं, हाईली कंप्रेसिबल होती हैं. तो कंप्रेसिबिलिटी सबसे ज्यादा किसकी होगी, गैस की होगी. इट मीन्स कंप्रेसिबिलिटी ऑफ गैस विल बी मैक्सिमम एंड इट विल बी लीस्ट इन केस ऑफ सॉलिड, and liquid are some compressible. It means compressibility of liquid will be greater than solid. Now we will discuss next property, and it is motion of particle. So listen. Motion of particle in case of solid, it is very least. It is much less. We can say it is much less, or we can say it is least. It means जो particles का motion होगा वो सबसे कम किसमें होगा, solid में. Because why? Because its particles are fixed. Its particles are fixed. So there will be least motion of their particle. So listen, in case of liquid, the particles of liquid are in
motion. It means particle of liquid perform some motion. Particles of liquid perform some motion and in case of gas, we all know that particle of gas move randomly in all direction. So particle of gas move randomly in all direction. So listen, this is 13 number property. Now we will discuss next property, and it is boiling point and melting point. 14 number property, boiling point and melting point. तो हमें पता है जो बॉइलिंग पॉइंट है BP, वी कैन टेक इट जनरली फॉर लिक्विड. हम लोग इसे बॉइलिंग पॉइंट को किसके लिए लेते हैं? लिक्विड के लिए लेते हैं. तो लिक्विड का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, फॉर एग्जाम्पल वाटर, सो द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेल्सियस. इट मीन्स वाटर का क्या होगा? बॉइलिंग पॉइंट होगा. इन केस ऑफ सॉलिड, हमें पता है सॉलिड क्या होते हैं? मेल्ट होते हैं. सो लिसन, फॉर सॉलिड वी टॉक अबाउट, हम किसकी बात करते हैं? मेल्टिंग पॉइंट की. इट मीन्स लिक्विड, सॉलिड हैज मेल्टिंग पॉइंट, लिक्विड हैज बॉइलिंग पॉइंट एंड गैसेज हैज क्रिटिकल टेम्परेचर. So gases have critical temperature. So what is critical temperature? The temperature below which gas can be liquefied. It means ऐसा temperature जिसके नीचे कोई भी गैस क्या होती है? लिक्विफाई हो जाती है या लिक्विड में चेंज हो जाती है. That temperature is called as critical temperature. It means उस टेम्परेचर के बाद एक क्रिटिकल स्टेट आ जाएगी जहां पर गैस नहीं रह जाएगी. वो किस में चेंज होने लगेगी? लिक्विड में चेंज होने लगेगी. तो गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है? कम होता है. सो लिसन, सॉलिड हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट. सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? ज्यादा होता है. लिक्विड हैज हाई बॉइलिंग पॉइंट. लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है? थोड़ा ज्यादा होता है. So listen, these are some properties of solid, liquid and gas.